ڈالر کی قدر میں بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 25 روپے سستا ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 290 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اہم خبر ہے ڈالر کی قدر میں بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے کفیل احمد سے۔ کفیل، کیا اپڈیٹس ہیں؟ بینک نے ڈیسیژن لیا ہے انٹر بینک میں ڈائیورسنگ کے حوالے سے جو تمام اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آج بڑی کمی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے اور 315 تک پہنچنے والا اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر تھا اس میں تقریباً 25 روپے سے زائد جو ہے وہ کمی جو اوپن مارکیٹ میں ڈالر ہے وہ 290 روپے پر جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا ہے۔ اس حوالے سے کرنسی ایکسچینج کے جو پریزیڈنٹ ہیں ملک بوستان ان کے جو ہے وہ بڑی کمی دی گئی ہے امکان۔ کفیل، آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ڈالر کی قدر میں بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 25 روپے سستا ہو گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 290 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا تھا، لیکن آج 25 روپے سستا ہوا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر اور اس وقت 290 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات خرم شہزاد۔ خرم صاحب، 315 روپے تک پہنچ گیا تھا اوپن مارکیٹ میں ڈالر، اب 290 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ آپ کو وجہ کیا لگتی ہے ایک دم 25 روپے کم ہونے کی؟ دیکھیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیٹ بینک نے ایک اعلانیہ جاری کیا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس ہوتی ہیں وہ بیسکلی جو باہر کی پیمنٹس ہوتی ہیں جو ڈالرز میں کریڈٹ کارڈ سے یہاں پہ جو ہے وہ پے کیا جاتا ہے، وہ بیسکلی ہو یہ رہا تھا یا یہ بہت عرصے سے ہوتا آیا ہے کہ بینک جو ہیں اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدتے ہیں اور پھر اپنے کسٹمر کے بہاف سے پیمنٹس کرتے ہیں، اور یہ کافی عرصے سے ہوتا آیا ہے۔ اب اسٹیٹ بینک نے یہ کیا ہے، بینک کو یہ کہا ہے کہ آپ انٹر بینک سے جو ہے ڈالر خرید سکتے ہیں اور اوپن مارکیٹ سے ڈالر نہ بھی خریدیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، اپنے کسٹمرز کی پیمنٹس باہر کی ڈالرز میں آپ انٹر بینک سے پوری کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو ایک ایڈڈ پریشر تھا جو کہ اوپن مارکیٹ میں آ رہا تھا وہ شاید چھٹ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر 315 تک چلا گیا تھا، 314 315 تک، اب وہ دوبارہ تقریباً کوئی 290 کے پاس آ گیا ہے۔ خرم صاحب، آپ کو لگتا کیا ہے اس وقت جو پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال ہے اس میں ایکچوئل قیمت کیا ہونی چاہیے ڈالر کی؟ دیکھیے جی، ایکچوئل قیمت بدلتی رہتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت مختلف قسم کے جو ہے وہ طریقے ہیں اس کو گیج کرنے کے لیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان کی جو کرنسیز ہے اور آپ کی کرنسی ہے وہ پاس ہونی چاہیے، تاکہ آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے وہ ایک بیلنس میں رہے، اور اس میں آپ ڈالر کو جو ہے وہ 280 بھی دیکھ سکتے ہیں، 290 بھی دیکھ سکتے ہیں، 300 بھی دیکھ سکتے ہیں، 240 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قیمت چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑی چیز جو کرنی چاہیے جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ مارکیٹ میں اسپیکولیشن نہ ہو، اور مارکیٹ میں جو بھی کرنسی کی ویلیو ہو وہ ڈیمانڈ سپلائی پہ نکلے، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے رادر دین یہ کہ ہم زبردستی جو ہے وہ۔ اور ڈالر کی قیمت میں 25 روپے اچانک کمی کر دی گئی ہے، اس پر فوریکس ڈیلر ملک بوستان کیا کہتے ہیں، آپ کو سنواتے ہیں۔ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں، سٹہ بازی کا ان کو نہیں ملے گا۔ جب ہمارے فارن ایکسچینج بڑھ جائیں گے تو ہم ساری پابندیاں ہٹا دیں گے پھر، لیکن اس وقت ہر آدمی کو ایک ڈالر سوچ سمجھ کے خارج کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں پوری قوم سے اپیل بھی کرتا ہوں، اور اگر ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہا اور غیر ضروری انہوں نے ڈالر نہ خریدے تو انشاءاللہ انٹر بینک بھی ڈالر کا ریٹ گرے گا، اور انٹر بینک کا ریٹ جو ہے اس وقت بہت زیادہ ہے ہمارا۔ میں سری لنکا کی مثال دیتا ہوں، ان کی جو ہے جب ڈیفالٹ کیا تھا تو ان کو 325 سے کم ہو گئے 295 آ گیا، تو ہمیں کیونکہ اب انہوں نے لینوں میں لگ رہے ہیں اور انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے، تو ہم نے بھی اس سے پہلے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جائے ہم نے غیر ضروری چیزوں پہ جو ہے وہ بائنگ نہیں کرنی، اور جو ہماری لوگ جتنے بھی ہیں، میں پاکستان کی سلامتی اور معیشت کا مسئلہ ہے تو سیاستدانوں سے میں ریکویسٹ کروں گا وہ بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو ٹیپ اور آڈیو لیکس پر اٹارنی جنرل سے معاونت طلب کر لی۔ عدالت عالیہ نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی طلبی کا سمن معطل کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ استفسار کیا، کیا آئین اور قانون شہریوں کی کالز ریکارڈنگ کی اجازت دیتا ہے؟ اگر اجازت ہے تو کون سی اتھارٹی یا ایجنسی کس میکینزم سے یہ کام کر سکتی ہے؟ عدالت نے اعتزاز احسن، مخدوم علی خان، رضا ربانی اور محسن شاہ نواز رانجھا کو عدالتی معاونین مقرر کر دیا۔ قانون شہریوں کی کالز ریکارڈنگ کی اجازت دیتا ہے؟ اگر اجازت ہے تو کون سی اتھارٹی یا ایجنسی کس میکینزم سے یہ کام کر سکتی ہے؟
ऑडियो रिकॉर्डिंग खुफिया रखने और इसका गलत इस्तेमाल रोकने से मुताल्लिक क्या सेफ गार्ड्स हैं? अगर इजाजत नहीं तो शहरियों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी पर कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्काम से जवाब मांग लिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की तलबी का समन मुअत्तल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने ऑडियो टेप और ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। विफाक, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और PTA को भी पटिशन में फरीक बनाने की हिदायत कर दी गई। सेक्रेटरी कौमी असेंबली समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। पटिशन पर पैरा वाइज कमेंट्स जमा कराने का कह दिया। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस बाबर सत्तार ने जारी कर दिया। अदालत ने एतजाज अहसन, मखदूम अली खान, रजा रब्बानी और मोहसिन शाहनवाज रांझा को अदालती मुआविनीन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने सवाल किया, क्या गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड की गई कॉल्स को रिलीज करने की जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? बताएं कि क्या पार्लियामेंट किसी प्राइवेट शख्स के मामले पर इंक्वायरी कर सकती है? क्या रूल्स इजाजत देते हैं कि स्पीकर आम अफराद की गुफ्तगू लीक होने पर खुसूसी कमेटी बनाएं? पार्लियामेंट के एहतराम में तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए खुसूसी कमेटी का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं कर रहे। हुक्मनामे के मुताबिक पटिशनर नजम साकिब को खुसूसी कमेटी की तलबी का समन 25 जून तक मुअत्तल रहेगा। आवाम के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल 8 रुपए सस्ता होकर 262 रुपए फी लीटर हो गया। डीजल 5 रुपए कमी से 253 रुपए का हो गया। लाइट डीजल की कीमत में भी 5 रुपए कमी कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत बरकरार रहेगी। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। आपको आगाह कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से। आवाम के लिए अच्छी खबर यह है कि पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए कमी कर दी गई है। और आपको ये भी बताएं कि अब पेट्रोल की फी लीटर कीमत 262 रुपए हो गई है। डीजल 5 रुपए कमी से 253 रुपए का हो गया है। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए कमी की गई है। महंगाई की तकलीफ में थोड़ा रिलीफ। मुल्क में पेट्रोल और डीजल पहले की निस्बत सस्ता मिलने लगा। हुकूमत ने पेट्रोल 8, डीजल 5 रुपए सस्ता कर दिया। लाइट डीजल की कीमत भी 5 रुपए कम कर दी गई। पेट्रोल अब 262, डीजल 253 रुपए लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत 147 रुपए 68 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत 164 रुपए 7 पैसे पर बरकरार रहेगी। अवाम ने कीमतों में कमी को खुशाइन करार दिया। साथ ही कह दिया मज़ीद रिलीफ मिलना चाहिए। होशरबा महंगाई पर कंट्रोल के लिए बड़े फैसले करना होंगे। सर जिस हिसाब से इन्होंने बढ़ाया उस हिसाब से कम भी करें तो फिर बेहतरी है ना। 8 रुपये से महंगाई कम नहीं हो सकती क्योंकि हर चीज़ महंगी है। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि महंगाई कम करें। फर्दर भी आगे डिक्रीज करते रहें। रशियन ऑयल भी आ रहा है तो मेरा ख्याल है कि अच्छी काविश होगी। 80 जिस मिडल तबके तो ताल्लुक रखने हैं 100 रुपया भी सस्ता कर देंगे तो साढ़े 12 नहीं है। हुक्काम के मुताबिक नई कीमतें 15 जून रात 12 बजे तक मौसर रहेंगी। कराची की सड़कों पर दौड़ते चिंची रिक्शों के बायस शहरियों और इन रिक्शों में सफर करने वालों को किन मुश्किलात का सामना है, देखते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम गुलजार की इस रिपोर्ट में। अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। शहर की सड़कों पर चिंची माफिया का राज। तबाहाल सड़कों से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुंचना शहरियों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। ऊपर से रही सही कसर चिंची रिक्शों ने पूरी कर दी। जी हाँ, सड़कों पर कम उम्र ड्राइवर चिंची रिक्शों को दौड़ाते नजर आते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक हादसा तो रोनमा होते हैं बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया था चिंची रिक्शे में ही। वो गलत रूट पे जाने जल्दी चलाने के चक्कर में जो यंगस्टर होते हैं ना, जल्दी चलाने के चक्कर में तो पूरा रिक्शा पलट गया था। उधर चिंची रिक्शे में खवातीन को हिरासा करने के केस भी अमूमन रिपोर्ट होते हैं, जबकि बैठने की मुनासिब जगह ना होने के बाइस खवातीन को दुश्वारी का सामना भी रहता है। 150 लेडीज एक साथ बैठते हैं, उसमें थोड़ा सा ये होता है कि बजाय बात घुटने टच हो जाते हैं, कभी कभी तो इतना करीब होता है। शहर भर में दनदनाते चिंची रिक्शों के ड्राइवर के पास ना तो लाइसेंस है ना ही उनके कागजात, और तो और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी मुताल्लिका महकमे ख्वाबो खरगोश के मजे ले रहे हैं। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18.5 साल। 18.5 साल। शनाख्ती कार्ड बन गया? जी बना हुआ है। और लाइसेंस? लाइसेंस नहीं। तो बगैर लाइसेंस के तो चिंची मुंशियों का काम है, मुंशी आगे काम करते हैं हमारी वो
टोकन होते हैं रोड के बस। इतना कानून कराची में या पाकिस्तान में हो तो बात ही क्या है यार, मेरी सवारियाँ तंग हो रही हैं। अब मैं क्या, तुम्हारे पास लाइसेंस है? नहीं। लाइसेंस नहीं बना हुआ है? नहीं, अभी बगैर लाइसेंस के चला रहे हो, अड्डे पे लाइन में चला रहे हैं। शहरी ये सवाल करने के हक बजानिब हैं कि क्या इस माफिया को लगाम देने वाला कोई है या नहीं। शहर की सड़कों पे दंदनाते ये चिंची रक्शे जहां ट्रैफिक हादसात का सबब बनते हैं, वहीं ट्रैफिक की रवानी को भी मुतासर करते हैं। शहरियों ने आला हुक्काम से अपील की है कि इस माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। कैमरामैन हसन अली के साथ खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। शहर में जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ तो करा दिया गया, मगर बसेस की कमी के सबब शहरी खुसूसन खवातीन आज भी खस्ताहाल चिंची रिक्शा में सफ़र करने पर मजबूर हैं। एक खातून मुसाफिर से मिलवा रही हैं मरियम हसन। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत जो है शहर कायद में ग्रीन लाइन सर्विस भी जारी है। पीपल्स बस सर्विस का भी जो है वो आगाज़ हो चुका है। उसके साथ साथ ख़वातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस भी जो है वो शुरू की जा चुकी है। उसके बावजूद शहर कायद में चिंची रिक्शाज की वजह से जो है ट्रैफिक की रवानगी भी मुतासिर होती है। ख़वातीन जो कि यौमिया बुनियादों पर घरों से निकलती हैं स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए या अपनी जॉब्स के लिए, उनको भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। खातून हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैं जो रोज़ाना मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जिनमें ये कि एक तो चिंची रिक्शा का कोई टाइम नहीं होता, कभी वो 10 मिनट लेट आ रही होती हैं, कभी 15 मिनट लेट आ रही होती हैं। दूसरा ये कि दिन ब दिन इनके किराए बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये कि हर तरह के आपको पता है लोग उसमें बैठे हुए होते हैं, तो बहुत ना अजीब सा फील होता है लोगों के साथ बैठ के, बिल्कुल भी बंदा कंफर्टेबल फील नहीं होता। और जो ना मेरी हुकूमत से, गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ग्रीन लाइन या रेड लाइन उसकी ना तादाद को बढ़ाएं ताकि हमें सेफ्टी फील हो और हम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। यकीनन ख़वातीन की यही रिक्वेस्ट है कि इन बसेस को जो है उनकी तादाद में इजाफा किया जाए, आया कि ग्रीन लाइन हो या पीपल्स बस। मरियम हसन, बहुत शुक्रिया आपका। कराची की सड़कों पर बेहंगम चीखते चिंगाड़ते चिंची रिक्शा खामोशी से महाना 12 करोड़ करप्शन का सबब बने हुए हैं। गैर मयारी सवारी जहां ट्रैफिक रवानी में खलल डाल रही है, वहीं मुसाफिरों के लिए सफ़र इंतहाई खतरनाक है। आखिर चिंची माफिया का सरपरस्त कौन है और ये माफिया इतना ताकतवर कैसे बन गया? बोल न्यूज़ ने इस धंधे को चलाने वालों का सुराग लगा लिया। मज़ीद जानेंगे साद गुज्जर की रिपोर्ट में। कराची में चिंची माफिया का सरपरस्त कौन? ये माफिया इतना ताकतवर कैसे? हुक्काम की नजरों में धूल झोंक कर धंधा कैसे चमकाया जा रहा है? बोल न्यूज़ ने सब खोज निकाला। इन सवालों का जवाब हासिल करने के लिए बोल न्यूज़ की टीम ने चिंची माफिया पर किया खुफिया ऑपरेशन। रात से पर्दा उठ गया। चिंची चलाने वालों से पैसे वसूल करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी हुई है जो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पैसे वसूल करते हैं। शहर में तकरीबन 10,000 से ज़ायद चिंची मुख्तलिफ रूट्स पर चल रहे हैं जो कि रोजाना मुबैना तौर पर 400 रुपये भत्ता देते हैं। खुफिया कैमरे से बनी वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह भत्ता वसूल किया जा रहा है। यानी 60 रुपये मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद माफिया के कारिंदे यौमिया लाखों रुपए अपने आकाओं को पहुँचाते हैं। सवाल ये है कि आला हुक्काम इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ां क्यों हैं? क्या ये माफिया बहुत ताकतवर बन चुका है या कोई और वजह? साद गुज्जर, बोल न्यूज़, कराची। उधर फैसलाबाद में भी महंगाई से हर शख्स परेशान नजर आता है। ऐसे में माजूर रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि घर का वाहिद कफील हूँ, अब कमाना और घर चलाना मुश्किल हो गया है। मजीद क्या कहना है ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर रिक्शा ड्राइवर के साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से आम शहरी जो हैं बुरी तरह पिस कर रह गए हैं। एक शहरी मेरे साथ जो मौजूद हैं, शमरोज़ इनका नाम है, ये स्पेशल पर्सन हैं, दोनों टांगों से माजूर हैं, लेकिन माजूरी के बावजूद इन्होंने अपना जो है इस चीज़ को मजबूरी नहीं बनाया और भीख मांगने के बजाय ये रिक्शा चला रहे हैं। लेकिन रिक्शा चलाने के बावजूद भी, मेहनत करने के बावजूद भी महंगाई का मुकाबला करने की सकत नहीं रखते। 27 साल शमरोज़ ने आई काम किया हुआ है। शमरोज़ से बात भी करते हैं। सर महंगाई तो कमर तोड़ महंगाई है, यहाँ तक कि पहले तो गुजारा कर लेते थे ना, अब तो गुजारा भी नहीं हो सकता। ठीक है, हर जहाँ पे भी जाएं जो चीज़ जो पहले 10 रुपये की थी अब वो यहाँ पर 50 रुपये की है। और ऊपर से बिलों के टैक्सेस, गैस के टैक्सेस, मकानों के टैक्सेस, पता नहीं क्या क्या डल रहे हैं। कितने आप बहन भाई हैं और कोई कमाने वाला, किस तरह घर का गुजारा चल रहा है? सर मैं घर में सबसे बड़ा हूँ
اور گھر کی تمام رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ مجھ پر ہے. اور میرے والد صاحب جو مزدوری کرتے تھے اب ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے تو اب وہ مزدوری نہیں کر سکتے. یہاں پہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان ایک تو مہنگائی پہ قابو پائے, دوسرا جس طرح یہ معذور ہیں, اسپیشل پرسن ہیں, اسی طرح دیگر جو خبروں کا سلسلہ جاری ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, جس کے بعد دیکھیے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ حافظ نعیم جماعت اسلامی کے امیر بن جائیں گے, لیکن میئر کراچی بننے کی لکیر ان کے ہاتھ میں نہیں. الیکشن سے قبل جادوگر نے انہیں کہا تھا کہ میئر آپ ہوں گے, لیکن ان کا جادو فیل ہو گیا. سعید غنی نے دعویٰ کیا جماعت اسلامی کو 160 سے بھی کم ووٹ ملیں گے. ہمارے پاس 173 ووٹ ہیں, 193 ممبران لے آئیں, آپ کا میئر تسلیم کر لیں گے. پی ٹی آئی کے اکثر ممبران نے سانحہ 9 مئی سے پہلے کہا تھا جماعت اسلامی کو ووٹ نہیں دیں گے. امیر تو شاید وہ بن جائیں گے, لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ کراچی کا میئر بننے کی جو ہاتھ میں لکیر ہے ان کے ہے نہیں. اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ممبرز ملا کے ان کے پاس اکثریت ہے تو بھائی پھر فرسٹریشن کائے کی ہے. انتظار کر لو, 15 کو الیکشن ہے, آپ کو پڑ جائیں گے 193 ووٹ, بن جائیں گے میئر. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانیں گے, آپ کو پڑ گئے 193 مان جائیں گے. لیکن میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ممبرز کی اکثریت نے 9 مئی سے پہلے اپنی جماعت کو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم جماعت اسلامی کو ووٹ کسی صورت نہیں دیں گے. تو میرا یہ سمجھنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو 193 کاؤنٹ کیے بیٹھے ہیں, میرے حساب سے میری جو کیلکولیشن ہے, اگر یہ 160 کے قریب بھی پہنچ جائیں تو یہ شاید ان کی کامیابی ہوگی اور اسی پہ وہ خوش ہو جائیں اگر 160 ان کو پڑ جائیں. لیکن شاید 160 سے بھی کم ووٹ ان کو پڑیں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کے جو ووٹس ہیں وہ 173 کے قریب ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم جیت جائیں گے. اہم خبر دیں آپ کو, سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق کیس کی سماعت. چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے. حکومت کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر نظر ثانی کا فیصلہ. اٹارنی جنرل نے دوران سماعت سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا. تفصیلات جان لیتے ہیں وہ نیوز کی نمائندہ نیلم ارشد سے. نیلم, آگاہ کیجیے. بالکل جی, آپ کو بتائیں کہ سماعت شروع ہو چکی ہے. اہم کیس کی اہم سماعت ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وکیل نون لیگ صلاح الدین نے جو دلائل ہیں وہ شروع کر دیے ہیں, جبکہ دوسری جانب کاف لیگ کی طرف سے جواب جمع قرار دیا گیا ہے. اہم کیس کی اہم سماعت شروع ہو چکی ہے. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے کیس سے متعلق یہ سماعت ہے, اور چیف جسٹس رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کاف لیگ نے اپنا جو جواب ہے وہ جمع کرا دیا ہے, اور رات یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے جواب جمع کرا دیا اور اب اس کی تردید جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اور اس رپورٹ سے متعلق بھی آپ کو بتائیں کہ عدالت میں جواب جو جمع کرایا گیا وہ پڑھ کر بھی سنایا جائے گا. اس وقت جو نون لیگ کے وکیل ہیں صلاح الدین, ان کی طرف سے دلائل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ اہم کیس کی اہم سماعت جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. جبکہ دوسری جانب اگر بات کریں دیگر جماعتوں کی, اہم سماعت اس وقت جاری ہے. نیلم, آپ سے مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے. فی الوقت شکریہ. پشاور کے کرسچن کمیونٹی سے منسلک اسکولز کے طلبہ اور اساتذہ کا ریڈیو پاکستان کا دورہ. عمارت کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کرایا گیا. اساتذہ نے کہا کہ جس طرح قومی اثاثوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے, اس پر ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے. ریڈیو پاکستان کے اسٹیشن ڈائریکٹر محمد اعجاز خان نے آنکھوں دیکھا احوال بتاتے ہوئے کہا کہ مالی نقصان کا ازالہ تو ہو جائے گا, مگر نادر نسخوں کے نقصان کی کمی کو کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا. پشاور میں کرسچن کمیونٹی سے منسلک اسکولوں کے طلبہ اور اساتذہ کا ریڈیو پاکستان کا دورہ. طلبہ اور اساتذہ کو جلی ہوئی عمارت کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کرایا گیا. اساتذہ نے کہا کہ جس طرح قومی اثاثوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے, اس پر ہمارا سر شرم سے جھک گیا ہے. کوئی بھی مہذب انسان اس کو احتجاج نہیں کہہ سکتا, بلکہ یہ سوچی سمجھی تقریب کاری ہے. ملکی املاک کو نقصان پہنچانا انسانوں کا کام نہیں ہو سکتا. اسٹیشن ڈائریکٹر محمد اعجاز خان نے آنکھوں دیکھا حال سناتے ہوئے کہا کہ شرپسندوں نے سڑکوں پر احتجاج کے دوران ریڈیو پاکستان پشاور کی دیوار کو توڑ دیا. شرپسندوں نے ریڈیو پاکستان پشاور کے استقبالیہ بلاک کو بھی آگ لگا دی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے ہتھیار بھی چھین کر لے گئے. اعجاز احمد کے مطابق ریڈیو پاکستان کے عملے نے قرآن کے واسطے دیے, مگر شرپسندوں نے کسی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے سب کچھ راکھ کر ڈالا. افسوسناک حملوں کے باوجود
11 मई को रेडियो पाकिस्तान ने अपनी ट्रांसमिशन का दोबारा आगाज कर दिया। मुल्क भर में पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। लाहौर में जिन्ना हाउस दौरे के दौरान पाक आर्मी के वेटरन्स ने सानह 9 मई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पेशावर में क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुंसलिक स्कूलों के असातिज़ा और तलबा ने रेडियो पाकिस्तान का दौरा किया। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा भी किया। पाक फौज से इजहार यकजहती, शोहदा को खराज अकीदत, फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वेटरन्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के वफ्द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया। 9 मई के अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अलमिया करार दिया। सानह को शर्मनाक करार देकर मुल्जिमान को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। बाबा कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का घर है और ये बाबा कौम से ज़्यादा अहम शख्सियत तो हम पाकिस्तानियों के लिए कोई हो नहीं सकती कि इस तरह की कार्रवाई यकदम नहीं हो सकती, अचानक नहीं हो सकती। ये बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत सब कुछ किया गया है। ये वाक़या नहायत ही दिलखराश वाक़या है और इस तरह के वाक़े को हम कंडेम करते हैं। पेशावर में क्रिश्चियन कम्युनिटी के असातिज़ा और तलबा रेडियो पाकिस्तान पहुँचे। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। पुरतशद्दुद सरगर्मियों की मजम्मत की। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। असातिज़ा का कहना था, कौमी असासों को नुकसान पहुँचाकर हमारा सर शर्म से झुक गया। कोई मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। जब हमने यहाँ की इमारत को देखा, खबरों में तो हम देखते थे कि जली हुई है, लेकिन इतना एहसास हमें उस वक्त नहीं हुआ जो आज के विज़िट के दौरान हमने जितनी डिस्ट्रक्शन देखी है और जितना बुरा हाल देखा है, उससे हमारी जो आंखें हैं शर्म से झुक गई हैं। कैसा इंसान है जिन्होंने ये सब एहतजाज के नाम पर खेल खेला। एहतजाज करना हर इंसान का हक है, लेकिन ये एहतजाज नहीं है, ये तकरीबकारी है। शुरका ने फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाने का भी मुतालबा किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की हर्बी सलाहियतों में इजाफा, नई फौजी तनसीबात और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर से चीन को भारत पर बरतरी हासिल हो गई। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक एयर बेसिस की तामीर और तरक्की से भारतीय फजाइया खौफजदा हो गई। चीन की हर्बी सलाहियतों में इजाफा, भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार। 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर झड़पों के बाद चीनी फौज ने अपनी पोजीशन को इंतहाई मजबूत बना लिया। नए एयरबेस, मिसाइल बेस, सड़कें, हेलीकॉप्टर्स और रेलवे लाइंस तामीर। चीन ने दीगर सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खातिर ख्वाह इजाफा किया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक चीन ने LEC पर अपनी फ़िज़ाई क़ुव्वत में इजाफा किया है, जिससे चीन को भारत पर बढ़तरी हासिल हो गई है। चीन अब न सिर्फ तेज़ी से फ़ौजी दस्ते मुतय्यन कर सकता है, बल्कि उसकी हमला करने की सलाहियत में भी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख के दारुल हुकूमत लाहा से 400 किलोमीटर दूर चीन ने होतान एयरबेस पर नए रनवे की तामीर के साथ साथ ड्रोन्स और 5th जनरेशन फाइटर्स J-20 भी मुतय्यन कर दिए। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक एयरबेस की तामीर और तरक्की से भारतीय फ़िज़ाइया खौफजदा। भारतीय माहिरीन ने एतराफ़ किया है कि चीन एयरबेस की तामीर और तरक्की से खित्ते में फ़िज़ाई जंग की नौयत बदल जाएगी। अमरीकी जेल में तवील अरसे से कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से बहन फौजिया की दूसरी मुलाकात। आफिया ने जेल की बदतर जिंदगी और हालात से आगाह किया और जेल से अपनी फौरी रिहाई के लिए कोशिशें कर। आफिया सिद्दीकी से बहन फौजिया की दूसरी मुलाकात। आफिया की बहन की फौरी रिहाई की कोशिशें करने की दरख्वास्त। अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस फोर्ट वर्थ की जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से फौजिया सिद्दीकी ने दूसरी मुलाकात की। मुलाकात 3.5 घंटे जारी रही। मुलाकात में की गई गुफ्तगू रिकॉर्ड भी की गई। मासी में 32 साल कैद काटने वाली सियाफाम कैदी के खौफनाक हमले और तशद्दुद का खौफ भी डॉक्टर आफिया पर तारी नजर आया। मुलाकात के दौरान डॉक्टर आफिया ने अपनी बहन से इस खौफ के तनाजुर में अपनी जान के खतरे का जिक्र किया। डॉक्टर आफिया ने अपनी बहन को जेल की बदतरीन जिंदगी और हालात से भी आगाह किया। उन्होंने फौजिया से जेल से अपनी फौरी रिहाई के लिए कोशिशें करने की भी दरख्वास्त की। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयाँ। ईसा नगरी के करीब स्नैप चेकिंग के दौरान कार सवार मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 जख्मियों समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 फरार होने में कामयाब। औरंगी टाउन में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए डकैती की 70 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस
3 मुलजिमान को धर लिया। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने 150 मोबाइल फ़ोन्स छीनने का एतराफ़ कर लिया। 10 से ज़ायद मोटरसाइकिलें भी चोरी की। ज़िला कोट अद्दू के नवाही इलाके में सिलेंडर धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस टीम मौके पर शवाहिद इकट्ठे कर रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबश्शिर मिर्ज़ा से। अहम खबर दें आपको, पाक ईरान सरहद पर दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर फायरिंग। दहशतगर्दों के साथ झड़प में 2 सिपाही शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान जिला केच में फौजी चौकी को निशाना बनाया। चौकी पर मौजूद चौकस दस्तों ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को कामयाबी से पीछे धकेल दिया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक ईरान सरहद पर दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर फायरिंग। दहशतगर्दों के साथ झड़प में 2 सिपाही शहीद हो गए। ISPR की जानिब से बताया गया है दहशतगर्दों ने बलोचिस्तान जिला केच में फौजी चौकी को निशाना बनाया। चौकी पर मौजूद चौकस दस्तों ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये वाकया पाक ईरान सरहद पर बलोचिस्तान के जिला कीच में सिंगवान का इलाका है, वहां पर पेश आया, जहां पर दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी को निशाना बनाने की कोशिश की गई और इसके नतीजे में शदीद झड़प हुई। 2 तरफा फायरिंग का तबादला हुआ और ISPR का कहना है कि चौकी पर मौजूद जो दस्ते हैं वो पहले से अलर्ट थे और उन्होंने तमाम अवेलेबल वेपन से दहशतगर्दों का मुकाबला किया और उन्हें बड़ी कामयाबी के साथ पीछे धकेला। इस 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 2 सिपाहियों के शहीद होने की इत्तला है, जिनके नाम भी ISPR की जानिब से जारी किए गए हैं, जिसमें सिपाही हसनैन इश्तियाक हैं, उनकी उम्र 34 बरस थी और उनका ताल्लुक DG खान से था। इसी तरह सिपाही इनायतुल्लाह शहीद हुए, उनकी उम्र 27 बरस थी और उनका ताल्लुक बलोचिस्तान के जिला झलमक्सी था। और ISPR का कहना है कि दोनों शोहदा ने बड़ी बेजिगरी से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाने शहादत नोश किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फौरी तौर पर इस इलाके में एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है ताकि दहशतगर्दों की तमाम राह बरात जो है वो बंद की जा सके। इसके साथ ही ईरानी हकाम से भी राब्ता किया गया है ताकि बॉर्डर पार उनको किसी किस्म की सपोर्ट ना मिल सके। और इसके अलावा ये भी वाज़ेह किया गया है कि कौम के ताउन से, कौम की हिमायत से सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के तमाम जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर पीस लाने के लिए, अमन लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए मुस्तैद है और इस हवाले से किसी किस्म का जो रुकावट है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी सलमान, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। मौसम की बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुत। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश, लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। चमन, क़िला सैफुल्ला और ज़ियारत समेत बलोचिस्तान के दीगर शहरों में बारिश से नदी नालों में तग़यानी आ गई। स्वात, एबटाबाद, मलकन में बारिश और जालाबारी से फसलों को नुकसान पहुँचा। हवाएं, बादलों की घन गरज और बिजली की तरतराहट। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुसलसल बारिश से रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मौसम सर्द हो गया। AC, पंखे सब बंद करना पड़े। रावलपिंडी के नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। पेशावर में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी। मालाकंड, चारसद्दा, कोहाट और पाराचनार में भी खुनकी बढ़ गई। मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर के शुमाली अजला में तीसरे रोज़ भी बारिश, जल थल एक हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम ने गर्मी में सर्दी का नज़ारा करा दिया। बलूचिस्तान के कई शहरों में तूफ़ानी बारिश और जालाबारी। चमन, किला सैफुल्ला और ज़ियारत समेत दीगर शहरों में बारिश से नदियों में पानी का बहाव बढ़ गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली मशरिकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मुकामात पर जालाबारी का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का नया सिलसिला शुरू हुआ है। बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया है। मज़ीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम खान से। नदीम, बताइए। पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता शब से वक्फे से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है और जिसके बाद से गिलगित का मौसम जो है काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि इस वक्त हम गिलगित शहर में मौजूद हैं और गिलगित के जो शहरी इलाके हैं यहाँ पे भी इस वक्त बारिश हो रही है और यही सूरत हाल गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला में है। बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है।
पहाड़ों ने जो है एक मरतबा फिर से बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं कि बारिशों के दौरान जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह नया सिलसिला नदीम खान, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश जारी है। नाला लई में पानी का बहाव तेज़ है, पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। नाला लई के किनारे पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे सलमान आवान, उनसे मजीद जानेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में नाला लई के किनारे पर कटानिया के मकाम पर, जहाँ पर इस वक्त भी मूसलाधार बारिश जो है वो जारी आप देख सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सुबह सवेरे से बारिश हो रही है और महकमा मौसमियात का कहना है कि कटानिया के मकाम पर नाला लई का जो बहाव है वो 5 फुट है, जबकि गवाल मंडी में ये बहाव जो है वो 4 फुट के करीब रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर जो कि नशेबी इलाके हैं, जिन्हें अर्बन फ्लडिंग के लिए वनरेबल तस्वुर किया जाता है, वहाँ पर बासा का अमला जो है वो मौजूद है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि नाला लई में पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है और नाला लई जो है वो जो नशेबी इलाके हैं शहर के, वहाँ से गुजरता है और इन इलाकों के अंदर इन मकबर नाला लई में चूँकि पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, इसलिए वासा का अमला जो है मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है और वासा का अमला जो है हैवी मशीनरी के साथ इन मकामात के ऊपर मौजूद है। और जो मुख्तलिफ इलाके हैं जिसके अंदर लियाकत बाग है, कमेटी चौक है, वारिस खान है और इसके अलावा नाला लई के मुख्तलिफ किनारों के ऊपर वासा का अमला अलर्ट है, हैवी मशीनरी के साथ मौजूद है और उनका कहना है कि सूरत हाल इस वक्त तक काबू में है। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। गुज़िश्ता रात से वक्फे से शहर और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस सड़कों में पानी जमा होने के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। तेज़ तूफ़ानी बारिश के बायस दरख्त गिरने से तारें टूटने के वाक़यात भी पेश आए हैं। इसी हाल से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं माजिन यूसुफ से। माजिन, बताइए। गुज़िश्ता रात से मुल्तान और गिरदोनवाह में बारिश का सिलसिला जारी है, जो कि अब थम चुका है। हल्की धूप तो निकल आई है, लेकिन इसके साथ सूरत हाल की बात करें तो सड़कों पे जो है वो पानी ठहर चुका है आके। इसके साथ साथ जो दरख्त हैं, कुछ अब्दाली रोड इसके गिरदोनवाह की बात करें तो दरख्त भी गिर चुके हैं, कुछ तारें भी गिरने की इतलात आई हैं और इसके साथ साथ लोगों को बिजली के हवाले से मसाइल का सामना है और घरों के सामने पानी खड़ा है और सड़कों पर भी जो शाहराएं हैं उन पर भी पानी इस वक्त खड़ा हो चुका है, जो कि अभी तक ताहाल नहीं निकाला जा सका। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आके ये जो है ना वाटर वर्कर्स वाले जाके मेन होल साफ करें, सब कुछ करें तो पानी निकल जाएगा। नहीं करते तो ये सारा दिन ऐसे ही रहता है। तो कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा होती है। पैदल आदमी नहीं चल सकता, साइकिल पे नहीं चल सकता, गाड़ियाँ हैं तो वो बंद हो जाती हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है। पैदल गुजरने वाले हों या सवारियों पे गुजरने वाले हों, उनको तो परेशानी हो ही रही है। साथ ही साथ जो बिजली के मसाइल हैं, जो तारें गिरने की चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, वो भी यहाँ पर हो रही हैं। और थाईलैंड में एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की धूम। बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान के तनसाजी ने मजमूई तौर पर 14 सोने, 4 चांदी और 2 कांसी के तमगे जीत लिए। 2013 में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की, बट मेरा प्रोफेशनल करियर जो था वो मेरा 2016 में स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले मैंने मिस्टर लाहौर का टाइटल विन किया था, फिर उसके बाद ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी, देन मिस्टर पंजाब, ये 2023 में मैं हुआ। फिर उसके बाद मैंने मिस्टर पाकिस्तान खेला, उसके अंदर मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और आज मैंने थाईलैंड के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड, एशिया लेवल पे गोल्ड लिया। इराक में जारी ऑयल वार के दौरान शहरियों को बचाने का मिशन। जैकी चैन और जॉन सीना होंगे एक साथ इन एक्शन। हॉलीवुड मूवी हिडन स्ट्राइक का ट्रेलर जारी कर दिया गया। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शेब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की ज़बानी सुनी। 60 दिन
दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।